खत्म हो जाएगा, सब कुछ सही रहा तो कल तक आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा. Alright, so we have started with the chordates and we have seen some traits of the chordates over there. Let me go. Alright, so when we start with the chordates wala part, we have done few things in this. We have seen few things that chordates are going to have number of things. You'll have a nerve chord, you'll have a notochord, you'll have a pharyngeal gill slits, and along with that, you will also have your post-anal tail. तो ये कुछ चीजें आपको मिलेगी आपके chordates में. These are like some of the important traits you'll find in the chordates in all the chordates. चाहे वो कोई भी हो, ये traits आपको मिल रहे हैं. So ये चार traits आपको याद रखने हैं. You have a presence of notochord, presence of nerve cord, excuse me, your pharyngeal gill slits, and your particular post-anal tail. So last thing is going to be post-anal tail, which you'll be finding in them. So these are the things you have to know to find in all the chordates. Now we have jumped into one of the group, that is my Urochordata. तो ये तो आपको कॉकरोच में बता देते हैं नर्वस सिस्टम का. So this is what you find in the difference in the chordates and non-chordates के अंदर difference आपको मिल जाएगा. Now let's talk about your group, that's my Urochordata. अब Urochordata को मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूँ. Let's have a quick revision of what you have done in the Urochordata. जब भी आपके सामने टर्म आएगा, whenever you happen to get a term like Urochordata, मैंने आपको एक बात यहाँ पे बताई थी कि आपको यहाँ पे यूरो का मतलब आपको समझना है. यूरो का मतलब आपका होता है टेल. यूरो का मतलब आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा टेल. सो यूरो का लैटिन में मतलब ही आपका यहाँ पे होता है टेल. Now one thing you have to know here is that when we discuss about the urochordates, you will find this species will have a larval stage and adult form. So basically ये सारे आपके marine होते हैं. So first of all you have to know when we get a group like Urochordata, that's a subphylum. So chordata के अंदर आपको एक subphylum जो आपको दिख रहा है, that's my Urochordata. So this is my subphylum. Now this subphylum is known to be marine. This is known to be marine, so you don't find them anywhere else. They're all going to be marine over here. अब इसमें आपको दो फॉर्म्स मिलते हैं. You can have a sessile form. आपको sessile यहाँ पे मिलेगा, sessile form भी आपको मिलेगा आपको यहाँ पे. You'll also have a free living form. You'll have a sessile form, you'll have a free living form as well. Right? तो आपको दोनों टाइप के फॉर्म आपको मिल जाते हैं यहाँ पे. आपको ऐसे भी आपके एग्जाम्पल मिलेंगे जो चिपके हुए होंगे, which are attached to the substrate. वो किसी ग्राउंड के ऊपर, किसी सॉइल के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर चिपके हुए होंगे. That's a sessile form. वो स्विम नहीं कर रहा. And you will also find some forms which are free swimming one, जो freely ओशन के अंदर आपके स्विम कर रहे होंगे. अब इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट आपका यहाँ पे ये होता है कि when you observe the larval stage, so they will also have a larval stage. They are also going to be having the larval stage. तो अगर आप इनका larval stage को observe करते हो, if you happen to observe their larval stage, you will get to see few things in them. और वो चीज आपको हमें क्या मिलेगी, that if you see the larval stage ना, the larval stage will have a notochord. समझो इसका हेड है, हेड वाला पार्ट. So larval stage will have a notochord. Notochord आपको मिलता है यहाँ पे. So that is in the larval stage. So you'll have a notochord, but in the tail region. Notochord आपको यहाँ पे मिल जाना, but ये notochord आपको मिलेगा आपके यहाँ पे tail वाले एरिया के अंदर. So this notochord is something I'll be finding in my tail region. अब बात यहाँ पे ये होती है कि लार्वल स्टेज पे तो आपको नोटोकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ पे एडल्ट बनता है, as soon as I will find this become adult, you don't have notochord seen over there. तो लार्वल स्टेज पे you will have a notochord, but as soon as my Urochordata, as soon as my this species जो भी इस ग्रुप में आती है वो आपकी एडल्ट यहाँ पे बन जाएगी, उसके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. The notochord will be no longer seen in them. Now because of that, I will say that this is going to be my showing retrogressive evolution. इसलिए मैं कहूंगा यहाँ पे कि ये जो मेरा ग्रुप है आपका यहाँ पे, ये मेरा शो करता है आपका रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन. रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन. नाउ व्हाट डू मीन बाय रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन? इसका मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपके लार्वल स्टेज पे आपको एक एडवांस फीचर आपको दिख रहा है, बट एज सुन एज द एनिमल बिकम्स एडल्ट, जैसे ही आपका यहाँ पे एडल्ट बनेगा, सो एडल्ट वोंट बी हैविंग द
नोटोकॉर्ड. सो एडल्ट जब भी आपका बन जाता है, व्हेन इट बिकम्स एडल्ट फॉर्म में आ जाता है, विल हैव नो नोटोकॉर्ड इट्स सीन. सो नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. सो एडल्ट फॉर्म के अंदर विल हैव नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. नोटोकॉर्ड एक आपका एडवांस फीचर है, लेकिन ये आपको बाद में नहीं मिल रहा, आपको एडल्ट फॉर्म के अंदर नहीं मिल रहा, ये गैप हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज माय रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन. दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिट्रोग्रेसिव. जब आप एक एडवांस से प्रिमिटिव फॉर्म में आप जा रहे होते हो ना, व्हेन आर गोइंग फ्रॉम एडवांस टू प्रिमिटिव फॉर्म, जब आप एक एडवांस फॉर्म से आप जा रहे होते हो प्रिमिटिव फॉर्म के अंदर, इसको हम बोलते हैं आप एज अ रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन. सो ये टर्म याद रखना. लार्वल स्टेज में यू हैड अ नोटोकॉर्ड, एडल्ट फॉर्म के अंदर आपको नोटोकॉर्ड आपके यहाँ पे नहीं मिलता. सो दैट ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड का कोई मेन फंक्शन होगा नहीं. द नोटोकॉर्ड माइट नॉट बी सर्विंग ऑल द फंक्शंस, सो दैट इज व्हाई इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. एंड इवन दो इट्स अ chordata, इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ chordata. यहाँ पे आपको जो ग्रुप आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने के, इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ chordata, एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड कि यहाँ पे आपको विदाउट नोटोकॉर्ड आल्सो यू विल फाइंड द एनिमल इज गोइंग टू सर्वाइव ओवर देयर वेरी हैप्पीली विदाउट एनी इश्यूज. सो नोटोकॉर्ड है आपका यहाँ पे, बट ओनली इन द लार्वल स्टेज. एज सुन एज इट विल टर्न इनटू एडल्ट, you will find the notocord is no longer seen. This is called as my retrogressive evolution. ठीक है, बताइए मुस्कान, क्या सवाल है आपका? मुस्कान या आफ्ताब, जो भी है. हाँ सर, मतलब रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन सुना सर, सारे वॉइस ही गायब हो गए सर, दोबारा बता सकते हो? रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये होता है, अच्छा बता देना कभी भी बच्चों को, अगर आवाज मेरी गायब हो जाए ना ऐसे, तो प्लीज लेट मी नो. रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का मतलब आपको यहाँ पे ये होता है कि आपका लाइक एडवांस तरीका था, उससे आप पीछे आ गए. एडवांस ट्रेड से व्हेन यू गो बैक टू अ सिंपल ट्रेड, दैट इज कॉल्ड रिट्रोग्रेसिव. पीछे जाना, रिट्रोग्रेसिव मतलब पीछे जाना. तो यहाँ पे आपका एवोल्यूशन को नॉर्मली क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है. प्रोग्रेसिव मतलब कि आप लेस एडवांस से मोर एडवांस फॉर्म के अंदर आप कन्वर्ट हो रहे हो. आपके पास पहले एक सिंपल फोन था, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, आपके पास लाइक आईफोन है, दैट्स अ प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन. बट व्हेन यू गो फ्रॉम एडवांस फॉर्म टू लेस एडवांस फॉर्म, उसे हम कहते हैं रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन. और वो आपको इस ग्रुप के अंदर या इस सब फाइलम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है. यही इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्रेट है. यहाँ पे दे आर मराइन, ससाइल फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, दे आर फ्री लिविंग वन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. लार्वल स्टेज विल हैव अ नोटोकॉर्ड एंड द एडल्ट फॉर्म विल नॉट हैव अ नोटोकॉर्ड. इसलिए हम इसे बोलते हैं आपने यूरोकॉर्डेटा, क्योंकि आपको नोटोकॉर्ड मिल रहा था, लेकिन कहाँ मिल रहा था, यू आर फाइंडिंग देम इन द टेल रीजन के अंदर, एंड दिस इज व्हाई यू कॉल देम एज अ यूरोकॉर्डेटा. तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. दिस वन थिंग यू हैव टू नो दिस. अच्छा, वन मोर थिंग, यू विल फाइंड इनको हम इवन कहते हैं टूनिकेटा. ये भी रखना ना, यू आल्सो कॉल देम टूनिकेटा बिकॉज दे विल हैव अ ट्यूनिसिन नाम की कवरिंग इनके आसपास को मिल जाएगी. सो बेसिकली होता क्या है, एक बॉडी के आसपास विल हैव अ आउटर कवरिंग यू विल फाइंड इन देम, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिसिन. सो ट्यूनिसिन इज अ काइंड ऑफ अ पॉलीसेकेराइड. इट इज अ कॉम्प्लेक्स polysaccharide. It is a type of my complex polysaccharide. So it is a one kind of polysaccharide जो आपको मिलता है इन इस ग्रुप के आसपास, like covering, the outer covering they will have is made up of my tunisin. And because आपको tunisin की outer covering आपको हर एक ग्रुप स्पीशीज में आपको मिल जाती है, that is why we call them as a tunicata. That is why we're going to call them a tunicata. So याद रखना, you will have the tail, notochord, you will have, they are going to be marine all the time. They are also known as my protochordates. You know that. यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा दोनों को आप यहाँ पे रखते हो एक सिंगल ग्रुप के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज माय प्रोटोकॉर्डेट्स. प्रोटोकॉर्डेट्स में रखने का यहाँ पे मतलब ये होता है दैट दे आर माय प्रिमिटिव कॉर्डेट्स. ये कॉर्डेट्स है लेकिन ये प्रिमिटिव टाइप के हैं. दे विल हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज ओनली. याद रखना ये पॉइंट, बिकॉज ये पॉइंट इसको डिफाइन करता है. दिस इज द ओनली पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू डिफाइन दिस ग्रुप. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट इन द लार्वल स्टेज. Few examples of urochordates are Selpa, Acidia, and Doliolum. So Selpa, Acidia, Doliolum are the three examples you can know in this. So Selpa का यहाँ पे पिक्चर नहीं है, बट याद रखना Selpa, Doliolum and Acidia are the three examples of your urochordata. तीनों के अंदर आपको जो कॉमन ट्रेट यहाँ पे याद रखना है, that is going to be नोटोकॉर्ड मिलेगा, बट ओनली इन द लार्वल स्टेज. एडल्ट फॉर्म के अंदर आपको नहीं मिलता. तो ये तीन चीजें आपको इसमें याद रखनी है. दीज आर द फ्यू ट्रेट्स यू हैव टू नो. इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये इतनी ट्रेट्स आपको याद रखना है. देन लेट्स हैव अ कांसेप्ट टेस्ट. यूरोकॉर्डेटा इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ व्हिच ग्रुप? आंसर तो इसका आप मुझे दे दोगे, देन आई विल हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन आफ्टर दैट. पूर्वा बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर प्रोटोकॉर्डेट्स.
मुझे पूर्वा ये बताओ कि आपके जो हेमिकोरेटा आपके होते हैं इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगा? हेमिकोरेटा जो है आपका यहाँ पे, इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे हो रहा था? कोई बताएगा? और कोई बताएगा? हैंड रेस कर, लाइक वैसे ही बताएगा अनम्यूट करके, हाउ सर इट वाज मैं हैपनिंग। बताऊं? सर प्रोबोसिस ग्लैंड। सर वेरी प्रोबोसिस गुड, ग्लैंड। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, राइट। दैट इज योर प्रोबोसिस ग्लैंड, उसकी वजह से आपके यहाँ पे एक्सक्रीशन आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगा। ट्रू, राइट, ठीक है। ये सारी चीज आपको धीरे धीरे करके याद करनी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय सेफेलोकॉर्डेटा। अब सेफेलोकॉर्डेटा का जब आप यहाँ पे जिक्र करते हो ना, इट्स अगेन अ वेरी सिंपल ग्रुप। So when we talk about cephalochordata, आपको एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि सेफेलो का मतलब आपका यहाँ पे होता है हेड पार्ट। सेफेलो का मतलब आपको यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे हेड पार्ट। राइट, सो दैट इज वन थिंग टू नो कि यहाँ पे हेड से रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दे आर आल्सो गोइंग टू बी मराइन। ये भी मेरे यहाँ पे मराइन होते हैं। दे आर द वन विच आर फ्री लिविंग। इसमें ससाइल फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। दे आर द फ्री लिविंग वन। ये आपके यहाँ पे होते हैं फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग फॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव अ लार्वल स्टेज। सो अगेन लेट्स ड्रॉ अ स्मॉल लार्वल स्टेज। तो यहाँ पे भी आपको लार्वल स्टेज मिलेगा बिल्कुल देखने के लिए। एंड लार्वल स्टेज विल बी हैविंग, जब आप लार्वल स्टेज को यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो, सो लार्वल स्टेज के अंदर आपको मिलेगा नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक। सो लार्वल स्टेज जिसकी यहाँ पे फेस बना दिया हमने यहाँ पे। सो लार्वल स्टेज विल हैव अ नोटोकॉर्ड फ्रॉम योर हेड टुवर्ड्स द टेल। दिस इज योर नोटोकॉर्ड ओवर हियर। So notochord is something which from the head sitting there. You will find a notochord will be seen over there, right? Now when you get to see this notochord seen from the head से tail तक के अंदर आपको जब notochord आपको मिलता है देखने के लिए, you should know this thing very carefully that ये आपका larval stage है। जब लार्वा आपका एडल्ट में कन्वर्ट होगा, जब लार्वा आपका एडल्ट में कन्वर्ट होगा, समझो लार्वा मेरा एडल्ट बन चुका है। तो जब मेरा लार्वा यहाँ पे एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, इवन इन दैट आई विल हैव द नोटोकॉर्ड फ्रॉम द हेड से लेके टेल तक। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड मेरी यहाँ पे गायब नहीं हो रही। यहाँ पे आई विल स्टिल फाइंड द नोटोकॉर्ड इज बीन सीन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे गायब नहीं हो रहा। इट इज बीन देयर इन द लार्वल फॉर्म, इट इज बीन आल्सो बीन देयर इन द एडल्ट फॉर्म एज वेल। सो नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे दोनों फॉर्म्स के अंदर आपको देखने मिलेगा। यू विल हैव इन द लार्वल फॉर्म, विल आल्सो फॉलो इन द एडल्ट फॉर्म के अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए। अगर मुझे एडल्ट और लार्वल फॉर्म दोनों के अंदर नोटोकॉर्ड यहाँ पे मुझे मिल जाए, देन दैट इज एग्जांपल ऑफ माय प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा। बेटा हैंड रेस क्या करो, बेटा हैंड रेस क्या करो, डोंट, हाँ प्लीज रेज योर हैंड। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। बताइए मुस्कान कुरानी, मुस्कान कुमारी बोलिए। सर ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं इनके सब फाइलम्स है क्या, यूरोकॉर्डेटा और सेफालोकॉर्डेटा? Now, basically, your chordata will have this one group called as my protochordates. इनको हम नाम देते हैं, इनको हम collectively कहते हैं protochordates. The subphylum is my urochordata and cephalochordata. तो आप ऐसे देखोगे, you will see it like this. You have a group chordata, you have a phylum chordata. Chordata के अंदर you have like two subphylum, cephalochordata, urochordata और एक और आपका आएगा vertebrata. और cephalochordata और urochordata को हम collectively कॉमन नाम देते हैं. You call them as the protochordates. अब उन्हें हम प्रोटोकॉर्डेट्स इसलिए बुलाते हैं बिकॉज दे आर माय प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, दैट्स इट। तो प्रोटोकॉर्डेट एक आपका नाम है। सब फाइलम तो आपको ये याद रखना है, योर सेफलोकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा इज अ सब फाइलम। ठीक है मुस्कान, ओके दिस सर। इज व्हाट यू हैव टू नो। तो ये चीज आपके यहाँ पे हो गई। सो दे आर द वन व्हिच आर शोइंग प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको एडवांस फॉर्म आपको मिल जाए। सो लार्वा से जब आप एडल्ट फॉर्म के अंदर आ जाए तो यू हैव अ एडवांसमेंट इज बीन सीन ओवर हियर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ये बात आपको याद रखनी है। दीज आर द ओनली थिंग्स यू हैव टू नो। जो मेन ट्रेड्स आपके आते हैं सेफेलो और यूरोकॉर्डेटा के अंदर, दे आर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कि नोटोकॉर्ड आपको कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा, उसके बेसिस पे ही आपके मेन ट्रेड्स आपके यहाँ पे बने होते हैं। सो दीज आर द ओनली मेन कैरेक्टर्स व्हिच यू हैव टू नो, दैट्स इट। बाकी कुछ आपको याद नहीं रहता। इट्स अ कॉर्डेट ग्रुप, सो दैट आर द थिंग्स यू हैव टू नो।
लेट्स हैव अ लुक। मराइन, एक बार फिर नोटोकॉर्ड आपको मिलेगी यहाँ पे। ब्रैंकियोस्टोमा इज एग्जांपल इन दिस। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। हेड से लेकर टेल तक आपको मिलेगी यहाँ पे, और वो आपको पूरे लाइफ पर मिलेगी। लार्वा स्टेज में भी आपको मिल रही थी, एडल्ट फॉर्म में भी आपको दिख जाएगी। नोटोकॉर्ड इन सेफलोकॉर्डेटा आर प्रेजेंट इन ABCD। बताइए हर्षित, क्या होगा इसका आंसर? नोटोकॉर्ड इन सेफलोकॉर्डेटा प्रेजेंट वेयर? सर ऑप्शन 3 और ऑप्शन बी में, सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अगर आप मुझे बता रहे हो, देन आपका आंसर यहाँ पे सही है। यस, बिटवीन द हेड टू टेल, और इट विल बी देयर थ्रू आउट द लाइफ। सो पूरी लाइफ के अंदर आपको ये नोटोकॉर्ड आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यू फाइंडिंग इन दैट। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। यू कैन हैव अ लुक एट दिस नोट्स लेटर ऑन। सो याद रखना, फाइलम कॉर्डेटा विल हैव देयर थ्री सब फाइला। यू हैव अ यूरोकॉर्डेटा, यू हैव अ सेफलोकॉर्डेटा एंड यू हैव अ वर्टिब्रेटा। अब हम हमारा यहाँ पे हम वर्टिब्रेटा को हम देखेंगे। यहाँ पे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ प्रोटोकॉर्डेट्स, इनको इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड, एंड दे आर गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली मराइन आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सो दिस व्हाट वी हैव सीन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन सी द एग्जांपल ओवर हियर, ऑल द एग्जांपल हैज टू remembered. You have your branchiostoma, amphioxus or lancelet. They are all my example of my cephalochordates. Acidia selpadulum is example of your urochordata. Now let's talk about my vertebrata. अब जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है vertebrata, when you get a term like a vertebrata, the very first thing you know in this कि I will have a notochord which will convert into my vertebral column. So किसी का क्वेश्चन है क्या, या पुराना हैंड रेज है? आई गेस पुराना हैंड नहीं रेज सर, है। क्वेश्चन है एक। सर एक बोलो मिनट बोलो। ऐड करना सर, एक मिनट। इसमें एक एग्जांपल था ना, बस। सर ये जो ब्रांकिस्टोमा है, ब्रैकेट में इसको कहते हैं या इसका भी एग्जांपल है ये? नहीं नहीं, उसको कहते हैं, राइट। यू कैन कॉल हिम एज तो ना, amphioxus or lancelet. अच्छा ओके। Yes. Now let's have a look at your particular vertebrata. When we discuss about the vertebrata, the first thing you have to know that here I will find notochord will convert into vertebral column. So notochord is converted into vertebral column. क्या रखना है आपको यहाँ पे कि आपका नोटोकॉर्ड यहाँ पे आपका कन्वर्ट किया था वर्टिकल कॉलम के अंदर। सो बेसिकली विल हैव द बैकबोन। सारे एनिमल्स के अंदर आपको यहाँ पे बैकबोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो यू विल हैव अ वर्टिकल कॉलम इन देम, दैट मींस देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ अ बैकबोन इन देयर बॉडी। सो बैकबोन आपको यहाँ पे काफी क्लियरली सारे ग्रुप के अंदर आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। नाउ वर्टिकल कॉलम कैन बी इधर कार्टिलेजियस और बोनी, इट डिपेंड्स ऑन स्पीशीज। स्पीशीज का रखना, आपकी जो वर्टिकल कॉलम आपकी जो यहाँ पे है, इधर इट कैन बी मेड ऑफ माय कार्टिलेज or it can be made of my bones. वो डिपेंड करता है आप कौन सी स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हो, राइट। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब वर्टिब्रेटा के अंदर आपको क्या मिलेगा ना, इट्स अ मच मोर एडवांस ग्रुप, इट्स अ बेटर ग्रुप, मच मोर एडवांस ग्रुप। तो यहाँ पे आपको मिलता है काफी अच्छे लेवल का सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन का मतलब आपको यहाँ पे होता है वेल डेवलप हेड फॉर्मेशन। सो एक वेल डेवलप हेड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे काफी क्लियर कट दिख जाता है। सो वर्टिब्रेटा के अंदर याद रखना, सेफलाइजेशन आपको यहाँ पे काफी अच्छे से आपको देखने के लिए आपको मिलता है यहाँ पे। सो हैव अ वेल डेवलप्ड head formation is seen. Head formation is seen. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, that you will have a cephalization will be happening over here and that's going to be a well developed head formation has been observed over here. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा you will find that when you talk about this vertebrata ना, you will have all the like advanced traits you will find in them, like you will have a closed circular system आपको यहाँ मिलेगा हमेशा। You'll always going to see over here closed circulatory system. You will also have a paired fins आपको मिलेंगे आपको यहाँ देखने के लिए। You can have a paired fishes के अंदर आपको paired fins आपको मिल सकते हैं।
एनिमल्स, बर्ड्स के अंदर हैव पेड अपेंडेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? सो पेड अपेंडेजेस कैन बी सीन इन देम। बोलिए आफ्ताब। सर ये पैड पिंस होता क्या है? आएगा अभी आएगा। आएगा। आवाज तो नहीं कट रही ना मेरी यहाँ पे? नो सर। नो सर क्लियर है। कुछ होना तो बताना भी ऐसा होता है तो लेट्स सी दैट। सो पेड फिन्स और अपेंडिसेस क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं। इसके पहले यहाँ पे कुछ सवाल का आंसर आपको देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे हेमिकोडेटा हैव अ रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। सो इनमें से कौन सा होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सो हेमिकोडेटा विल हैव अ रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर ओवर हियर एंड दैट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय स्टोमाकॉर्ड. Stomachord happens to be a rudimentary structure in the hemichordata. अब आपको याद ही रखना है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर आपको हमें मिलेगा ना हेमिकॉर्ड स्टोमाकॉर्ड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका यहाँ पे रोल क्या होता है. नाउ स्टोमाकॉर्ड इज समथिंग व्हिच विल फाइंड ओरिजिन फ्रॉम द एंडोडर्म. पहली बात याद रखना कि आपका ये एंडोडर्म से आपके यहाँ पे ओरिजिनेट कर रहा होता है. अब ये जब आपका एंडोडर्म से आपके यहाँ पे ओरिजिनेट कर रहा होगा, दिस विल हैव मेनली रोल इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सम हेल्प ड्यूरिंग द स्विमिंग. ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है. याद रखना नोटोकॉर्ड जो होता है, द नोटोकॉर्ड यू गेट टू सी इन द एनिमल्स ना, इट इज नोन टू प्रोवाइड द सपोर्ट. नोटोकॉर्ड आपका आ रहा होता है एज अ मेसोडर्मल ओरिजिन. आपके मेसोडर्म में से नोटोकॉर्ड बन रहा होता है. स्टोमाकॉर्ड आपका बन रहा होता है आपका एंडोडर्म में से. एंड स्टोमाकॉर्ड इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द सपोर्ट. इसका काम बेसिकली होता है ये हेल्प करता है आपके बेलोनल ग्लॉसेस को स्विम करने के लिए. तो ये एक आपको मेजर डिफरेंस रखना है. ऑन द अदर हैंड नोटोकॉर्ड जो आपका यहाँ पे होगा, दैट विल हैव अ रोल टू बी प्लेड इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द सपोर्ट. वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है. फंक्शन फिर से बताना आप. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि आपका जो स्टोमाकॉर्ड आपको यहाँ पे जो होगा ना, ये आपको ओरिजिन करेगा फ्रॉम द एंडोडर्म. ये आपका एंडोडर्म में से ओरिजिन करता है. यू हैव योर 3 जर्म लेयर्स. सो एंडोडर्म में से बनेगा आपका यहाँ पे स्टोमाकॉर्ड. स्टोमाकॉर्ड हैज नो रोल इन प्रोवाइडिंग द सपोर्ट. ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता. इट विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ रोल इन हेल्पिंग इन लोकोमोशन. आपके बेलोनल ग्लॉसेस के अंदर ये लोकोमोशन में आपकी एक सर्टेन अमाउंट में आपके यहाँ पे हेल्प करता है. दैट्स इट. उसके अलावा उसका कुछ वहां पे खास काम होता नहीं है. ऑन द अदर हैंड द नोटोकॉर्ड जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज ओरिजिन फ्रॉम द मेसोडर्म. आपका नोटोकॉर्ड आपका यहाँ पे मेसोडर्म से आपके यहाँ पे बन के आएगा. एंड सेकंड थिंग, द नोटोकॉर्ड इज नोन टू प्रोवाइड अ सपोर्ट टू द बॉडी. नोटोकॉर्ड आपके यहाँ पे सपोर्ट आपके बॉडी को प्रोवाइड करता है. सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस यू विल फाइंडिंग इन दैम. ठीक है, तो ये बात याद रखना. दिस इज व्हाट यू विल फाइंड ओवर हियर. देन वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हियर. Characteristic feature of the chordates are going to be your dorsal hollow nerve cord, prehensile notochord, paired pharyngeal gill slits. All of you know this. All the traits are going to be belonging to your, like option D बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर. सारे traits आपके होंगे chordates यहाँ पे, right? A phylum in which notochord is present only in the larval stage. Yes, वैसे ही बोल दो sir. अनूप का, किसका आंसर क्या होगा? सर यूरोकॉर्डेटा. Neurocortex. तो एग्जाम्पल बताओ. एग्जाम्पल एसिडिया और सेल्फा. and doliolum, right? Acidia, self and doliolum are the example in this, right? The phylum in which notochord extend from head to tail, we have already done this. That's going to be your cephalochordata. यहाँ पे आपको मिल जाएगा. Yes, ठीक sir. है. मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है. My question here is to all of you is going to be, you have this group of my Escalamanthus. क्या Escalamanthus monoecious होता है, dioecious होता है? सर डायशियस होता है. सर क्योंकि दोनों सेक्सेस सेपरेट होते हैं. Monoecious नहीं होगा, ये dioecious होगा. बिल्कुल सही. Right. Will Platyhelminthes have complete digestive system? नो सर. नो सर इनकम्प्लीट होता है. सेपरेट होता है. Incomplete होगा. ठीक है. Right. Okay. True. Claim cells, now you know, we have already discussed that thing. A phylum which composed of an anterior proboscis and collar and a trunk, that is going to be your hemichordata. Chordata. हेमिकोडेटा बरोइंग एनिमल्स होते हैं या फिर वो बरोइंग नहीं होते हैं? सर बरोइंग होते हैं. राइट, ठीक है. लेट्स हैव अ लुक एट, ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वर्टिब्रेटा. लेट्स जंप ऑन द वर्टिब्रेटा ओवर हियर. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना, यू विल फाइंड दैट यू हैव अ 2 ग्रुप्स. वर्टिब्रेटा को हम यहाँ पे 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. आप यहाँ पे ध्यान देना, यू डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, अनैक्था एंड gnathostroma. Gnathostroma and agnatha are the 2 groups I'll be finding in them. एक ग्रुप को हम कहते हैं which is going to be a jawless fish आपके यहाँ पे आएगी. So they lack जो jaws, उनके अंदर jaws present नहीं होते. And gnathostroma is the one जिसके अंदर आपको jaws आपको मिल जाएंगे. So agnatha and gnathostroma are the 2 groups I'll be finding in my vertebrata.
अब नेक्ना के अंदर आपका यहाँ पे आएगा साइक्लोस्टोमेटा। जॉलेस फिश के अंदर जो एग्जांपल आपका आता है, वन ऑफ द क्लास इज गोइंग टू बी माय साइक्लोस्टोमा। सो ये जो आपको क्लास आपको मिलता है दैट्स योर साइक्लोस्टोमा। और gnathostoma के अंदर तो आपके कई सारे क्लास आपके यहाँ पे आ जाते हैं, जिनके अंदर आपका टेट्रापोडा इज वन ऑफ द एग्जांपल यू विल फाइंड, विल बी स्टडीइंग देम इन डिटेल। और एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आपको मिलेंगे स्फिंक्स, आपको मिलेंगे यहाँ पे। सो विल हैव अ लुक एट देम। सो लेट्स फोकस ऑन माय वर्टिब्रेटा के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम इस क्लास के ऊपर फोकस करेंगे विच इज माय साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा वाले क्लास के ऊपर हम यहाँ पे करते हैं हमारा फोकस। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। बेयर फिन्स के अंदर वी हैव कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टियोथिस, समथिंग विल फाइंड इन द फिन्स वाले एनिमल के अंदर। In so chondrichthyes and osteichthyes are the one which are the fishes which will have the jaws. Okay, now and tetrapoda you know that, so we'll have a look at them separately. Notochord हमारे अंदर कन्वर्टर है वर्टेबल कॉलम के अंदर, यही आपको इस पिक्चर में बताया जा रहा है। Then heart will be made of my 2, 3 and 4 chambered। आपको वेल डेवलप आपको हार्ट मिल जाएगा, आपको वेल डेवलप किडनीज आपको मिल जाएगी। सो आप जैसे ही आप वर्टिब्रेटा ग्रुप के अंदर आप आते हो, आपको यहाँ पे वेल डेवलप किडनी, वेल डेवलप हार्ट आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये है आपके पैड अपेंडेजेस। आपके पास दो दो होते हैं ना, दो हाथ दो पैर, बैट के पास भी होता है, फ्रॉग के पास भी होता है। सो एवरीवन विल हैव, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द वर्टिब्रेटा। एज सून एज यू गेट इनटू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेटा, आपको फिन्स एंड लिम्स आपको यहाँ पे पैड आपको मिल जाते हैं, यू गेट टू सी देम इन पेयर। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड ओवर हियर। सो दीज आर द स्पीशीज ओवर हियर। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करो, मुझे बताओ ये जो है, ये तो चलो आप कर सकते हो, ये आपका फ्रॉग है, इट्स सिंपल। यू टेल मी व्हाट इज दिस स्पीशीज, ये स्पीशीज आपके कौन सी है? सर टर्टल। टर्टल है सर। टर्टोइज। सी टर्टल, सी सर टर्टल, टॉर्टोइज है। टर्टल। सर टॉर्टोइज। टॉर्टोइज नहीं, टॉर्टोइज नहीं, टर्टल है सर। सर सी टर्टल हाँ सर। सी टर्टल बोलो, सी दोनों में टर्टल, डिफरेंस क्या टॉर्टोइज नहीं होता है? बोलना। यस सर। आएगा आएगा बाद में, बाद में बेटा, बाद में जब रेप्टाइल करेंगे तब आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर अभी बताने लगे तो रेप्टाइल तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। एग्जाम आ जाएगी, रेप्टाइल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। ओके, दिस इज योर, ये तो कॉमन है आपके यहाँ पे, इंडियन रॉक पिजन। 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 एंड दिस इज योर, ये काउ। वाला क्या है? काउ। स्नेक। सर सॉरी। स्नेक। अच्छा, एरो उस तरफ कर रखा था। कोबरा बेटा, कोबरा, कोबरा है वो। स्नेक तो ठीक है, स्नेक तो कोई बता देगा, आई वांट टू नो, इट्स अ कोबरा। एंड देन है वो क्लाउन फिश, ये जो फिश आपके सामने यहाँ पे, दैट्स अ क्लाउन फिश। क्लाउन फिश। फाइंडिंग निमो वाली फिश है ये। चलो, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमा जो आपका यहाँ पे आपका ग्रुप है, नाउ लेट्स डिस्कस दिस ग्रुप ओवर हियर इटसेल्फ। सो साइक्लोस्टोमा जब आप यहाँ पे ग्रुप में यहाँ पे आप डिस्कस करते हो, नाउ लेट्स सी इसके अंदर आपको क्या क्या ट्रेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। So first of all, when you discuss about these traits, this will include all my jawless fish. इसमें आप क्या इस क्लास के अंदर आप क्या आएगा यहाँ पे, jawless fish. The fish won't be having the jaw. Right? That's one thing. This group will have all the jawless fish will come under this particular group. Right? So jaw is absent. Let me mention this again over here. Jaw is absent. माउथ जो यहाँ पे होता है वो सक्टोरियल माउथ होता है। सो माउथ इज सक्टोरियल, मतलब वो किसी को जाके चिपक के उसमें से न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए यूज किया जा सकता है। सो माउथ इज गोइंग टू बी सक्टोरियल, जो सकिंग करने वाला माउथ होगा आपके यहाँ पे, माउथ इज गोइंग टू बी सक्टोरियल। नाउ ये जो आपकी जो ग्रुप होती है, जो आपकी जॉलेस फिश आपको यहाँ पे जो मिलेगी आपके यहाँ पे, दे आर सीन इन द रिवर्स, दे आर ऑल्सो सीन इन द ओशंस। सो ओशंस में भी आपको मिलेगी आपको देखने के लिए, यू कैन आल्सो फाइंड देम इन द रिवर एज वेल। अब इनका लाइफ साइकिल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग क्यों होता है, लेट्स सी दैट। जब मैं इनके बारे में बात करता हूं, व्हेन आई डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्रुप, यू शुड नो दैट इस ग्रुप के साथ क्या होगा, दैट दे विल बी लिविंग इन ओशंस। सो दे विल मूव फ्रॉम ओशंस। सो ओशन से ये ट्रैवल करके आपके जाएंगे रिवर्स के अंदर। सो फ्रॉम द ओशंस दे विल गेट इन टाइम्स द रिवर्स। और ओशन से रिवर में ये जाते क्यों है, सो ओशन से रिवर के अंदर ये जाएंगे अपस्ट्रीम ट्रैवल करके फॉर स्पॉनिंग, अब स्पॉनिंग यहाँ पे क्या होता है, स्पॉनिंग का मतलब आपका यहाँ पे होता है कि आप जाके यहाँ पे आप एग ले कर रहे हो। सो बेसिकली होता क्या है कि ओशन से स्विम करके जाते हैं रिवर्स के अंदर, एडल्ट जाएगा वहां पर, वहां पे जाके वो एग लेकर आएगा। तो स्पॉनिंग का मतलब आपका यहाँ पे होता है
एग ले करना, लेइंग एग्स। सो लोग ब्रीड करेंगे वहां पे, मेटिंग करेंगे एंड दे विल स्टार्ट लेइंग द एग्स ओवर देयर। जनरली होता क्या है कि एग ले करने के बाद उनके यहाँ पे डेथ हो जाती है और एग्स में से जो लार्वा निकलते हैं, नाउ दोज लार्वा फ्रॉम देयर दे विल ट्रैवल इनटू द ओशंस। ओके, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन देम। सो याद रखना, ओशन से जाएंगे रिवर के अंदर, वहां पे एग ले करेंगे और एग में से जो आपका लार्वा निकलेगा, एग में से लार्वा इज समथिंग विल फाइंड हैपनिंग विद देम। सो लार्वा जब आपका यहाँ पे निकलता है, सो दिस लार्वा विल नाउ ट्रैवल इनटू द ओशन। वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा एंड देन अगेन इट विल ट्रैवल इनटू द ओशन। तो ये इनका लाइफ होता है। दिस इज गोइंग टू बी द लाइफ ऑफ द साइक्लोस्टोमा। इसमें जो भी आपकी जॉलिस फिश आपकी यहाँ पे आती है, इनका ये लाइफ आपको यहाँ पे याद रखना है कि ओशन से जाते रिवर्स के अंदर, रिवर में जाने के बाद दे विल ले द एग्स, वहां पे जाकर एग ले करेंगे बहुत सारे, लार्वा वहां से निकलेगा एंड लार्वा विल बिकम स्लाइटली एडल्ट एंड देन दे विल गो टुवर्ड्स द ओशन अगेन, और वहां पे जाकर रहेंगे। फिर एक बार ओशन में लार्वा आ गया, बड़ा हो गया, फिर वहां से वापस हो जाएगा रिवर के अंदर। दिस इज अ लाइफ साइकिल यू विल फाइंड इन दिस। सिमिलर लाइफ साइकिल आपको इवन मिलती है देखने के लिए, एक फिश होती है जिसके बारे में आपने सुना होगा बचपन में, यू कॉल हिम सैमन फिश। सैमन फिश जो आपकी होती है ना, इसके साथ भी यही होता है, ये फिश भी यही करती है, ओशन में ग्रो करती है, रहती है वहां पे, जैसे ही बड़ी हो जाती है दे विल गो टूवर्ड्स द रिवर्स, रिवर्स में जाएंगे वो, वहां पे जाकर करेंगे एंड देन अगेन उनके जो बेबीज हैच आउट होते हैं, दे विल ग्रो एंड दे विल कम बैक इनटू द ओशंस। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ये खत्म करने के बाद आपका सवाल लेता हूँ मैं। सर ये क्या लिखा है सर, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। फिश है, एस ये फिश है, तो है, ये एल एल है। एम ओ एन, SSPAWNING, स्पॉनिंग। सर एग्जाम्पल SULASULMON क्या लिखा है ये नीचे ब्रैकेट में? Salmon. SALMON। वो सर यू लग रहा था फिश है, इसलिए। फिश है, ये फिश है, फिश है, कोई बात नहीं, नहीं वो हैंड राइटिंग नहीं समझ आती, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, यू शुड आस्क दैट। सो दैट इज अ सैल्मन फिश। ये आपकी फिश होती है जो आपकी यहाँ पे करती है सेम काइंड ऑफ मूवमेंट आपकी शो करती है, बट दैट इज नॉट एग्जाम्पल। ये जॉलिस फिश का एग्जाम्पल है, ये फिश है, ये रियल फिश है, ये बस मैं एग्जाम्पल की तरह आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इट इज नॉट अ साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने देख लिया, वी हैव सीन दैट व्हाट आर द, यू हैव माउथ स्ट्रक्टोरियल, रिवर्स ओशंस में आपको मिलेंगे देखने के लिए, स्पॉनिंग ये करते हैं रिवर में जाके, जॉलिस फिश आपके यहाँ पे। नाउ लेट्स सी सम मोर पॉइंट्स। दे विल हैव presence of gills, so you'll have around 6 to 13 pairs of gills, you'll have 6 to 13 pairs of gills, you'll get to see them of gills. 15 होगा ना? Yeah, whatever the NCERT has mentioned over there. If NCERT says 15, then you have to go with the 15. But you will find certain species won't have 15. Certain species will have only 12 gills over there. But yes, whatever the NCERT is mentioned, you have to go with that. Then you will have, uske baad you will get to see, this is a one group you will find that they will have unpaired fins. Will have unpaired fins is something we'll have to know in them. तो यहाँ पे आपको जो fins आपको मिलेंगे यहाँ पे देखेंगे, वो आपके यहाँ पे unpaired होंगे. So basically you have to know in this that your fins over there are the one which are like generally आपको paired मिल जाते हैं, but यहाँ पे आपको unpaired आपको मिलेंगे यहाँ पे. So that is again one of the exception you find, क्योंकि normally आपने यहाँ पे ये देखा है कि आपके जो vertebrate आपके यहाँ पे होते हैं, they tend to have a paired fins. But यहाँ पे आपको मिल जाए आपके vertebrata का ही अंदर एक group आपको मिल जाए which will have the unpaired fins over there. So that is also one thing you have to know, a very different kind of trait. As they are the developments, obviously I will have a closed circulatory system. ये तो आपको यहाँ पे रह गई. You should know that they will have a two-chambered heart. They will have two-chambered heart. Now, when I say they will have a two-chambered heart, that actually means what over here? कि like they are similar to your fish. Fish के अंदर दो chambered heart ही आपको यहाँ पे होता है. एक auricle, एक ventricle. So they will have single auricle and single ventricle. Single auricle आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, और आपको मिलेगा आपको यहाँ पे single ventricle. This is what you will be finding in them. So एक बहुत ही basic सा ये trait आपको मिलेगा यहाँ पे आपको देखने के लिए. They will have, sexes are going to be separate. And this group can show a trait of being ectoparasites. Ectoparasites. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. So the sexes are going to be separate over there, and there are many of the groups, like many of them are going to be living there as a ectoparasites. मतलब ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आपके आसपास अगर कोई फिश दिख गई,
दे विल अटैच देमसेल्फ टू द फिश, और उसमें से सुरा के सर अपने यहाँ पे न्यूट्रिशन डिराइव करेगा. सो ये अपने आप को फिश के साथ अटैच कर लेगा, और अटैच करने के बाद इट विल स्टार्ट डिराइविंग द न्यूट्रिशन आउट ऑफ देम. सो दैट इज व्हाट दिस ग्रुप इज गोइंग टू बी नोन फॉर. और इसलिए हमने बोला था दे विल हैव सेक्टोरियल माउथ का यही एडवांटेज यहाँ पे मिलता है. सेक्टोरियल माउथ होने का फायदा ही आपको यहाँ पे होता है कि आप अटैच कर लो अपने आप को किसी एनिमल के साथ, मेनली फिश के साथ, एंड यू स्टार्ट डिराइविंग द न्यूट्रिशन आउट ऑफ देम. तो ये चीज आपको इसके अंदर आपको याद रखनी. दिस इज अ वेरी वन सिंपल थिंग यू हैव टू नो. चलो इसके एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं. So you can see 16 to 15 pairs of gill slits you will find over there. Ectoparasites are on some fishes. Suctorial mouth आपको यहाँ पे दिख जाएगा. आपको यहाँ पे sucking circular suctorial mouth will be seen without the jaws. And along with that we will have paired fins, right? Body divide of scales. याद रखना they will have unpaired fins भी आपको यहाँ पे मिलते हैं. A number of species will have the unpaired fins over there. Cranium and vertebral column are going to be showing the presence of the cartilage. So आपका cranium जो आपके यहाँ पे होगा, vertebral column आपका यहाँ पे होगा, it is made of my cartilage over here, right? And then you will have closed circulatory system will be seen in them. They'll have a closed circulatory system यहाँ पे. Wait a minute, आफ्ताब. Cyclostomes are marine, but they migrate for spawning for the freshwater ecosystem के अंदर. तो basically आपके migrate करके यहाँ पे आपके आएंगे, और वहाँ पे आके ये अपना करेंगे आपके यहाँ पे spawning. So basically they are going to lay the eggs over in them. This is what you have to know. Then examples यहाँ पे याद रखो. Hagfish, lamprey, petromyzon, myxin are the examples you have to know. Their larva after metamorphosis return to the ocean. एक बार आपका लार्वा थोड़ा बड़ा हो जाता है यहाँ पे, undergoes a metamorphosis, then again it will come back to the ocean. तो आपको वहां से ट्रैवल करके आपको ओशंस के अंदर आपके यहाँ पे आ जाएगा. This is something you will be finding in them. ये है आपके यहाँ पे कुछ traits. These are some of the common traits you have to know in terms of cyclostomes. याद रखना they look like a fish but they are not actually fish over here. ये आपके रियल सेंस में आपके फिश नहीं है. रियल फिश अभी आपके बाद में आएंगे. So you'll get to see a fish after this group. ये मेरा ग्रुप फिश जैसा लगता है यहाँ पे, बट वो एक्चुअली में फिश है नहीं. Because fish is something which is coming under the group of my jaw animals. They are the group which will be having the presence of the jaws over there. So let's try to see the fish in this. पहले इसको मैं यहाँ पे, this is again a very simple question. Cyclostomata are vertebrates without jaw, circular mouth, bare limbs. So बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर यहाँ पे आपका. वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसके अंदर आंसर. Sir, Without option D. jaws. Option D. Without Sir, jaws, option Only one circular D. mouth. both. Only And one circular mouth. right. So you'll have a without jaws and they'll have a circular mouth, right? Limbs नहीं होते इनके पास, limbs नहीं होते, fins होते, limbs नहीं होते इनके पास. So this is what you find in them. So this is what you get to see in terms of my cyclostomata. ये cyclostoma. Examples भूलना मत. Myxin, lamprey, like petromyzin and myxin यहाँ पे आ रखो. बाकी नाम तो common नाम है. You should know the genus name. Petromyzin and myxin यहाँ पे. अगर आप अपने स्कूल में देखोगे ना तो लैब में आपको ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे. You will get to see the examples in the, like you can find them in the labs very clearly seen. Then you have the chondrichthyes. Chondrichthyes हम यहाँ पे देख लेते हैं. This is the group which will be having your all cartilaginous fish. So chondrichthyes की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, let's discuss them over here. इनके एग्जाम्पल याद करना आसान है. इनके एग्जाम्पल आपने टीवी पे देखे होंगे. So this group will be having my cartilaginous fish. Right. Muskan या Aftab will have a question after this. Let's make a complete conversation. No, sir, I have no question. हाँ हाँ मुस्कान आपका ही है ना. ठीक है. Yeah. They are my cartilaginous fish. अब cartilaginous fish अगर यहाँ पे हम बात करें तो that simply means that your endoskeleton is made of my cartilage. अगर मैं मेंशन करूँ यहाँ पे cartilaginous fish, so I think you can understand the complete endoskeleton आपको मिलेगा यहाँ पे cartilage से बना हुआ. अब कुछ traits यहाँ पे याद रखने that you will have mouth on the ventral side, mouth on ventral side. So mouth आपको मिलेगा आपको देखने के लिए आपके ventral side के ऊपर. That's first thing you have to know. Second thing you'll get to see that they have an absence of air bladder. They'll have an absence of air bladder. आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा ना, अगर आपने कभी शार्क को देखा है, अगर आपने कभी किसी शार्क को टीवी के अंदर अगर आपने देखा है वहां पे, देन आपको भी नोटिस करना. देयर इज वन थिंग यू हैव टू नोटिस इन द शार्क. शार्क का जो माउथ होता है ना वो नीचे के साइड पे होता है. अगर आप कभी शार्क को देखोगे ना, Yes, sir. the mouth is on the ventral side. Yes, sir. Yes, sir, देख रखा है. ऐसा बोल रहे जैसे रोज देखते.
Yeah, they will have a mouth on the ventral side. So they will have a mouth on the ventral side. We'll get to see in the shark. इसके साथ साथ they have an absence of air bladder. अब यहाँ पे होता क्या है ना, जनरली अगर आपने कभी एक्वेरियम में फिश को देखा होगा, तो एक्वेरियम में फिश क्या करती है ना, उसे अगर ऊपर या नीचे करना हो पानी के अंदर, उसको ज्यादा अपना मूवमेंट नहीं करना पड़ता. जो एक्वेरियम में आपको जो फिश मिलती है, दे आर जनरली गोइंग टू बी माय बोनी फिश. और बोनी फिश के अंदर क्या होता है, दे हैव द एयर ब्लैडर. और एयर ब्लैडर की मदद से अ फिश कैन एक्चुअली मूव विद इन द वाटर कॉलम वेरी इजीली विदाउट एनी इश्यूज. तो आपका जो पानी के अंदर आपका यहाँ पे जो फिश होता है ना, वो आपका जो ऊपर नीचे वहां पे कर रहा होता है, कॉलम चेंज कर रहा होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, वो करने के लिए वो अपने एयर ब्लैडर को यहाँ पे इस्तेमाल करता है. बट शार्क के पास एयर ब्लैडर नहीं होता. शार्क के पास एयर ब्लैडर आपको देखने को नहीं मिलेगा. शार्क या जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, उनके अंदर आपको एयर ब्लैडर देखने के लिए आपको नहीं मिलता. सो दैट इज व्हाई दे हैव टू कीप ऑन स्विमिंग. अगर ये स्विम करना बंद कर देते ना, दे विल स्टार्ट ड्राउनिंग ओवर देयर. आप कभी नोटिस करना, शार्क हमेशा स्विम करती रहती है. कभी वो एक जगह खड़ी मिले आपको मिलेगी नहीं. यस सर. हाँ. वो एक जगह खड़ी मिलेगी तो जमीन पे बैठी हुई मिलेगी आपको. वहां पे अगर जमीन पे Yes, बैठी हुई है sir. तो वो खड़ी हुई है. और एल्स विल ऑलवेज फाइंड द शार्क स्विमिंग. बट अगर आप सेम चीज अगर आप अपने फिश को देखते हो, एक्वेरियम अगर किसी के पास है, या अगर आप कभी देखते हो उन फिश को पानी के अंदर, यू कैन फाइंड देम स्टैंडिंग एट अ सर्टेन पोजीशन विदाउट डूइंग सम एफर्ट्स. वो आराम से पानी के अंदर बिना ज्यादा मूवमेंट करे हुए आपके आगे खड़ी रह सकती है. दे आर एबल टू डू दैट बिकॉज दे हैव द एयर ब्लैडर. यहाँ पे आपको एयर ब्लैडर देखने के लिए आपको नहीं मिलता है. यू डोंट हैव अ प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन देम. सो ये एक चीज, ये एक ट्रेट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. This is one very important trait you have to know, that air bladder is absent in the sharks, in the convictus. You find the same thing in my osteitis के अंदर आपको मिल जाता है. ठीक है. अब एक और पॉइंट यहाँ पे आप याद रखना. आपने ये बात, पहले पॉइंट बताता हूं. You will find presence of well developed olfactory lobe. ये जो मेरा यहाँ पे ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा, देखिए आपका वेल डेवलप ओल्ड फैक्ट्री लोब. अब ओल्ड फैक्ट्री लोब यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन विच इज यूज फॉर अ सेंस ऑफ स्मेल. ये आपका वो ब्रेन का आपका पार्ट होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं स्मेल करने के लिए. आपने पता है कभी ना कभी ये टीवी पे सुना होगा या देखा होगा कि अगर आपका थोड़ा सा भी अगर आप ब्लड आ जाता है ना पानी के अंदर, तो शार्क उसे सेंस कर सकती है. थोड़ा सा भी अगर ब्लड मिक्स करते हो आप पानी के अंदर, द शार्क फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट एरिया कैन एक्चुअली नो देयर इज अ ब्लड ओवर देयर एंड दे विल स्टार्ट मूविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो व्हाई दैट हैपेंस, Yes, बिकॉज sir. दे हैव अ वेल डेवलप्ड ओल्फैक्टरी लोब. सो इनका जो सेंस ऑफ स्मेल का जो परसेप्शन होता है, इनका यहाँ पे काफी स्ट्रांग होता है. सो याद रखना, a shark will always have, I won't say shark, all the chondrichthyes are known to have a well developed olfactory lobe. Olfactory lobe अगर आपके सामने ये टर्म आ रहा है, याद रखना, it is known for my sense of smell. ये आपका जाना जाता है आपका यहाँ पे for your sense of smell. ये आपको याद रखना है. उसके बाद you will find this is a group which will show internal fertilization. Do they have, sharks have nostrils? They will have nostrils. Like they don't, like not the kind of nostrils you have, right? But they will have those apertures over there, right? And it's like nostrils is ज़्यादा, you try to understand, they have this nostril तो उनके वहाँ पे रहेंगे, but not like us, right? They will have the nostril but not like us, but they will have this sense organ in the brain. ये nostril से कोई connection नहीं होता बेटा, इसका brain से connection होता है. So and using that brain, they can actually get to know, in that particular brain, they will have this olfactory lobe, और उसकी मदद से they can actually have this sense of smell को detect कर सकते हैं यहाँ पे. हमारे पास भी होता है, लेकिन yes, हमारे पास we have a well developed nostril, उनके पास nostril होंगे, but not that well developed. But उनके पास nostril उतना well developed नहीं है, but they will have the olfactory lobe in them, which is much more developed than us. हम लोग इतना पता नहीं कर सकते, इतना वो लोग वहां पे पता कर सकते हैं. They will show internal fertilization. अब ये वाला पॉइंट याद रखना, ये इसमें आपको एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी. फर्टिलाइजेशन आपको मिलेगा आपको यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने के बाद यू शुड नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, दैट दे विल हैव ovoviviparous of my development. Ovoviviparous kind of development. अब ovoviviparous का यहाँ पे मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल होगा, मतलब मेल एंड फीमेल विल हैव अ कॉपुलेशन एंड द फर्टिलाइजेशन विल बी हैपनिंग इनसाइड द बॉडी. अब इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब आपके एग बनेंगे,
वो एग आपके अंदर ही हैच आउट होते हैं। तो एग तो आपके बन रहे हैं यहाँ पे, बट एग्स आर डेवलपिंग इनसाइड द बॉडी। एग तो आपके यहाँ पे बनेंगे आपके यहाँ पे, बट एग आपके यहाँ पे ले नहीं करेगा ये एनिमल। द फिश इज नॉट गोइंग टू ले द एग्स। एग्स आपके डेवलप करेंगे इनसाइड द बॉडी, और एग में से डायरेक्टली आपका यहाँ पे फिश निकलेगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे जो ओविपेरस। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, देखो आपके बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स के अंदर एग बनता है, सो एग को वो लोग ले करते हैं। आपका क्रोकोडाइल क्या करता है, क्रोकोडाइल के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद वो एग को ले करेगा, एंड एग का डेवलपमेंट होता है बॉडी के बाहर। तो उसे हम बोलते हैं वहां पे एज ओविपेरस। उसे हम बोलते हैं वहां पे एज ओविपेरस। बट जब मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ ओवोविविपेरस, इसका मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपका एग तो डेवलप कर रहा है, बट एग आपका बनने के बाद बॉडी के अंदर ही ग्रो करेगा, बॉडी के अंदर ही वो डेवलप करेगा, उसको फिश ले नहीं करेगी कहीं। एंड जब बेबी फिश बाहर निकलेगी, वो आपकी लाइक मदर में से बेबी फिश आपकी डायरेक्टली बाहर निकल रही होती है। दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज ओवोविविपेरस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। सो ओविपेरस डेवलपमेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। सो ये एक अलग चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये इवन आपको देखने के लिए मिलता है आपके येलो एनाकोंडा के अंदर भी, आपको यही देखने के लिए मिलता है। येलो एनाकोंडा आपका यहाँ पे हो गया, या एक स्नेक होता है रसल स्वाइपर करके, उसमें भी यही होता है। आपका फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली होगा, एग वो ले नहीं करते हैं। यू विल फाइंड डायरेक्ट बेबीज आर बीन रिलीज्ड ओवर देयर, बट एग्स आर फॉर्म्ड। लेकिन वो एग फॉर्म होने के बाद बॉडी के अंदर ही वो डेवलप करेंगे। दे विल डेवलप इनसाइड द बॉडी एंड द बेबीज विल बी हैच आउट डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन आई विल बी फाइंडिंग इन देम। नाउ आफ्टर दिस यू विल हैव, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट अगर आप मेल शार्क को आप देखते हो, सो मेल शार्क की अगर मैं यहाँ पे सेपरेटली बात करूंगा, सो दे विल नोन टू हैव, दे आर नोन टू हैव समथिंग कॉल्ड एज योर ऑन द वेंट्रल फिन, ऑन द पेल्विक फिन के अंदर, या मैं कहूंगा ऑन द वेंट्रल साइड, on the ventral side they will have a presence of your claspers. They will have the presence of the claspers. तो ये टर्म याद रख लो, they will have presence of a clasper. अब clasper होता क्या, हम यहाँ पे देख लेते हैं। Either you will have one or two claspers have been seen. So claspers are some appendages you will find in the male shark के ventral side के अंदर। और ये claspers का काम क्या होता है, they help during the copulation. They help during copulation. Claspers are going to help during copulation. सो ये आपको याद रखना है। सो प्रेजेंस ऑफ क्लैस्पर इज आल्सो इंडिकेटर ऑफ कि ये आपका मेल एनिमल है। तो मेल शार्क के अंदर आपको काफी क्लियरली आपको दिखता है, आपका ऑन द वेंट्रल साइड विल हैव प्रेजेंस ऑफ क्लैस्पर्स, एंड क्लैस्पर्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन के टाइम पे, इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। सो ये एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। Along with that, mainly they are going to be marine. So you will find majority of the species are going to be marine. So mainly the population will be seen in the marine ocean. Few are freshwater one. Few are freshwater species. मेजॉरिटी ऑफ डेम आप यहाँ पे देखोगे सारी आपकी मराइन होती है, बट फ्रेश वाटर भी मिलती है आपको, लेकिन कम होती है। आपकी स्टिंगरे हो गया, मांटारे हो गया, शार्क हो गया, दे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन इन नेचर। यू विल हैव द फ्रेश वाटर वन बट लेस इन नंबर। तो ये एक और बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो एक बार फिर आप यहाँ पे देख लो, कार्टिलेजियस फिश, माउथ ऑन द वेंट्रल साइड, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड ओल्फैक्टरी लोब्स दैट इज यूज्ड फॉर अ सेंस ऑफ स्मेल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको होते मिलेगा आपको यहाँ पे, और डेवलपमेंट आपको यहाँ पे होता है आपका ओवोविविपेरस काइंड ऑफ डेवलपमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, which itself means कि एग तो आपको बनेगा आपके यहाँ पे, बट एग में से you will find the baby fish will likely come out from the body. So एग में से एग को ले नहीं किया जाता यहाँ पे, एग को यहाँ पे ले नहीं किया जाता, you will find your baby fish will come out directly from the body. So you will find small baby fish comes out of the body, comes out of body. There's something you have to know. This is something you have to know in this. ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? Now let's have a look at few things. So Carcharodon is going to be the great white shark, जो बहुत famous है वैसे भी. Marine animal, streamline body. अच्छा, there's one more thing I have to tell you in this. एक और चीज मैं आपको यहाँ mention करना चाहूँगा. Chondrichthyes are known to have a presence of a lateral line. They have a sense organ. They have a sense organ, और इस sense organ को हम कहते हैं यहाँ पे as a lateral line. We call them as a
lateral line. Lateral line क्या होता है ना, आप कभी नोटिस करना, अगर आपकी फिश यहाँ, अगर मैं बताता हूँ कहाँ पे, assume that this is a fish. बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ. You have a fish over there, and the fish will have on the ventral side, I won't say on the lateral side, they will have a sense organ that is called as my lateral line. We'll have a lateral line. अब जब मैं कह रहा हूं कि इनके पास यहाँ पे लैटरल लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका सेंस ऑर्गन है. आप कभी नोटिस करना, फिश को है ना पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती अगर उसके पीछे कोई आ रहा है तो. मतलब अगर पानी के अंदर थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी फिश कहीं दूर आगे खड़ी है, अगर आप यहाँ पे भी अगर आप पानी के अंदर आप हाथ डालोगे, द फिश विल रियलाइज देयर इज समथिंग इन द वाटर एंड दे विल मूव अवे फ्रॉम दैट एरिया. अब वो सेंस करने के लिए दे हैव अ लैटरल लाइन. सो फिश डज नॉट एक्चुअली हैव टू सी बैकवर्ड्स कि पीछे से कौन आ रहा है. उसके लैटरल लाइन एज अ सेंस ऑर्गन उसे बता देते हैं कि आसपास कुछ हलचल हो रही है या आसपास कुछ ना कुछ है, एंड दैट इज व्हाई इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, सो वहां से अपना भागना चालू करेगी. सो यू शुड नो दैट अ फिश विल ऑलवेज गोइंग टू हैव अ लैटरल लाइन, चाहे वो आपकी कॉन्ड्रिक्थिस हो, चाहे वो आपके यहाँ पे ऑस्टेथिस हो, चाहे वो बोनी फिश हो, चाहे वो आपकी कार्टिलेजस फिश हो, दे विल ऑलवेज हैव अ लैटरल लाइन. और ये लैटरल लाइन आपको इवन मिलता है देखने के लिए आपके साइक्लोस्टोम्स के अंदर. साइक्लोस्टोम्स जो अभी जिनको यहाँ पे देखा था, they are also known to have a presence of a lateral line. So they are also going to have a presence of a lateral line, which is something we have to know. ठीक है. Wait a minute. Let me complete this and then we'll have a question, because if we take the questions, we will miss out on doing few things. So इसको यहाँ पे देख लीजिए पहले. So Kakiradon, just write down your questions. अपने क्वेश्चन है साइड में लिख लिया करो पूछने के पहले, like so that you don't miss out on them. Kakiradon is a great white shark, streamlined body, cartilaginous endoskeleton, something you can see that. Gill slits without operculum. That's one main thing you have to remember. अगर आप इनके गिल्स देखोगे ना, so gills will remain open all the time, so they won't have a covering over there. आपको जनरली क्या मिलता है अगर आप बात करते हो आपके बोनी फिश के बारे में, सो बोनी फिश है गिल्स कवर्ड. अगर आप कभी किसी ने बोनी फिश को अगर हाथ में पकड़ा है, आपको उनके ओपरक्युलम को ओपन करना पड़ता है, फिर आपको गिल्स दिखते हैं वहां पे. शार्क के साथ वैसा नहीं होता, शार्क या कार्टिलेजियस फिश वैसा नहीं होता. दे डोंट हैव अ कवरिंग ऑफ द ओपरक्युलम, सो इट इज अ कवरिंग. It is a covering which you don't find in them. ये एक आपके यहाँ पे कवरिंग होती है और उस कवरिंग को हम यहाँ पे देख नहीं पाते. बट द सेम कवरिंग आई कैन फाइंड इन द बोनी फिश. सेम कवरिंग जो आपके गिल्स को कवर करेगी वो आपको बोनी फिश के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है. Now they will have a placoid kind of scale, so you'll have a scales which are placoid type. They are just the names, you have to know them. You have a placoid scales, cycloid scales आपको मिलेंगे आपके बोनी फिश के अंदर. Powerful jaws, something you are familiar with. Teeth are modified placoid scales. ये relevant नहीं इतना, but just remember this. You have a two-chambered heart. All the fish will have a two-chambered heart. You don't have exception in this. सारे fish जो आपके होते हैं उनके अंदर आपको 2 chambered heart आपको मिलता है. यहाँ पे पिक्चर 4 का है, but याद रखना you will only have always have a 2-chambered heart in this. That means one auricle, one ventricle. Torpedo is an electric organ वाली fish. Trigon is a poison sting. That's a stingray. That is going to be a stingray. स्टिंग रे के टेल के अंदर आपको स्टिंग मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ द स्टिंग व्हाट विल हैपन कि आपका इट इज अ डेडली फिश. अगर ये स्टिंग करता है देन इट कैन बी सुपर पेनफुल एंड सम टाइम इट कैन बी फेटल एज वेल. काफी कम लोग की डेथ होती है बट इट कैन हैपन. सो यू हैव अ टॉर्पेडो, यू हैव अ ट्राइगॉन आर द सम ऑफ द स्पीशीज यू कैन फाइंड इन देम along with my great white shark. Clasper. In males, pelvic fins bear the clasper. तो आपको याद रखना है. अब मैं आपको बता सकता हूँ कि pelvic fins आपके होते हैं आपके ऑन द नीचे वाले साइड पे, ऑन द ventral side पे. So you should know what is my pelvic fin now. That on the ventral side you will find the pelvic fins और वहां पे आपको मिलता है आपके यहाँ पे claspers. Claspers आपके हो सकते हैं either 1 or 2. It depends on species to species. And this claspers are being useful during the copulation. So copulation के टाइम पे इनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. Sex is separate, internal fertilization, viviparous. अब देखो यहाँ पे viviparous यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. So याद रखना that actually means your, इसको रियल में हम बोलेंगे यहाँ पे as a ovoviviparous. This is something you have to know. आपका egg formation आपका यहाँ पे होगा. Egg formation होने के बाद you will find that your particular egg development will be happening inside the body and the babies are being released out. Directly baby fish आपके यहाँ पे बाहर आएंगे. You find them in many species, so this is one thing we have to know over here.
ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। तो पहले तो आप ये बताओ कि क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन लेटर ऑन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू Yes, नो sir. दीज आर द Yes, थिंग्स sir. व्हिच बी वेरी मच क्लियर टू। यहाँ पे ये कुछ जो टर्म्स है आपको ये यस मालूम होने चाहिए। Yes, sir. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चन। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या सवाल है आपका? इन इंसर्ट इट इज रिटन दैट मेनी ऑफ देम, हाँ तो ये मैं बता रहा हूँ, याद रखना। इट इज योर ओवरव्यू पैरास द राइट टर्म ऑन देम। वी पैरास इन द रियल सेंस ये नहीं होता। बोलिए ऋषा, बताइए, एंजली बताइए, So, sir, बोलिए। अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया आएगा कि उनका इंटरनल मतलब इंटरनल नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन जो होता है नहीं वो आएगा, विविपेरस होते हैं नहीं आएगा। आई एम टेलिंग यू ना, नहीं आएगा। इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग दे वोंट आस्क यू, सिंपल। इवन दो वहां पे एंड प्रिंट करा उसके हुआ है ना, वो अलावा नहीं पसंद। लेटरल लाइन सब में प्रेजेंट होती है फिशेस में। सब में बोने फिश, कार्टिलेज फिश, सब में आपको लैटरल लाइन मिलेगी राइट फ्रॉम लास्ट। इवन मैं बता रहा हूँ ओके। आपको, इवन टैडपोल विल आल्सो हैव अ लैटरल लाइन बट इन द टैडपोल स्टेज। इवन द टैडपोल हैज अ लैटरल लाइन बट उसको सिर्फ उस स्टेज पे ही मिलता है, जैसे वो आपका फ्रॉग बनेगा देन यू डोंट हैव अ लैटरल लाइन। ठीक है, बता। हाँ हाँ ठीक है, ओके बताइए सर। मुस्कान कुमारी, बोलिए। मुस्कान कुमारी बोलिए। ओके इट्स आफ्ताब क्या? अच्छा आफ्ताब, आप बोलिए। समवन एल्स आल्सो रेज देयर हैंड, कांट सी। सर पेल्विक फिन्स नाम दे रखा है बस। देखो क्या होता है ना आफ्ताब, ये अगर आपकी फिश हो गई यहाँ पे, समझो यहाँ पे एक आपकी फिश है, नीचे जो आपके फिन्स आते हैं ना, नीचे जो भी फिन्स आते हैं उसको हम कहते हैं पेल्विक फिन्स। चाहे वो कोई भी फिश हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी फिश हो, जो नीचे वाले जो आपके जो फिन्स आपके होते हैं, आगे आपको फिश का पिक्चर आएगा ना तब आपको दिखाता हूँ। सो वो जो फिश के नीचे जो आपको वहाँ पे जो फिन्स मिलते हैं वो कॉल देम एज अ पेल्विक फिन्स। जो फिन आपको यहाँ पे मिलते हैं ना, यहाँ पे भी तो फिन होते हैं इनके पास, यू कॉल पेक्टोरियल फिन्स, यू कॉल देम एज अ पेक्टोरल फिन्स। सो नीचे जो फिन्स मिलता है आपको वेंट्रल साइड पे, यू कॉल देम एज अ पेल्विक फिन्स। उनके साथ लगा होता है यहाँ पे क्लास पर। All right, now let's have a look at the examples. We have seen the dogfish, sawfish, pristis, colodon. पहले के टाइम पे स्क्लोडन का आपको डिसेक्शन करके बताते थे, बट वो फिर बाद में बैन हो गया। एंड कैक्रोडॉन तो आप यहाँ पे जानते हो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माय कॉन्टेक्टिस। ओके, मुस्कान कुमारी बताइए क्या सवाल है आपका? आपका हैंड रेज्ड है। सर, ये जो लेटरल फिन्स होते हैं मतलब लेटरल लाइंस होती है ये सारे फिशेज में होती है क्या? तो हाँ, फिर फिश जो होती है उनको मतलब कोई बड़ी फिश होती है वो खाने के लिए आ जाती है तो वो सेंस कर लेती है तो उन्हें चले जाना चाहिए ना, तो फिर वो मतलब उनका फूड कैसे बन जाती है? there is something called as a speed of that predator fish which is going to outrun them. वो ऐसे नहीं होता ना बेटा कि obviously we'll find every animal will have some kind of defense mechanism, बट प्रेडेटर उसे आउटरन करेगा ही ना हमेशा, तभी तो उसे खा पाएगा। आप इट्स लाइक सेइंग दैट इम्पाला अगर भाग सकता है तो कैसे इतना क्यों नहीं भागता कि चीता उसे पकड़ ना पाए, दैट काइंड ऑफ थिंग। इट विल ऑलवेज पिक दैट एनिमल अप। Similarly, if they have a lateral line which gives them a sense of environment around their surrounding, that doesn't mean कि वो अपने आप को हमेशा बचा पाएंगे predator के साथ। The reason we called predator as a predator because they have some strong traits जिसके से वो उसे कैप्चर कर पाते हैं अपने prey animal को। So that will always happen. That will always happen बेटा, वो तो हमेशा आपका होगा ही ना। ठीक है, तो याद रखना, this is a very thing which you always find in happening in the animal kingdom. All right, now let's do this thing first of all, फिर आगे बढ़ते हैं। Example of conductors which could have an external electric organ. बताइए हिमांशी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर फर्स्ट टॉर्पेडो। That's correct. Torpedo will be correct answer in this. चलिए इसको हम खत्म करते हैं यहाँ पे. We have to do this thing. We don't have much time, so let's complete this first of all. You have your osteotis यहाँ पे. ये टर्म आपके सामने यहाँ पे आएगा. Then you will find these are called as my bony fishes. अगर मैं इन्हें कह रहा हूँ यहाँ पे एज अ बोनी फिशेस, देन आपको यहाँ पे याद रखना है दैट दे विल हैव अ एंडोस्केलेटन मेड ऑफ माय बोन्स. एंडोस्केलेटन आपका जो यहाँ पे होगा ये हमेशा आपका बोन से बना हुआ मिल जाएगा. आई कैन नॉट सी फ्यू थिंग्स. ऑलराइट, ठीक है. एंडोस्केलेटन इज ऑलवेज गोइंग टू बी मेड ऑफ माय बोन्स ओवर हियर. वन मोर थिंग यू हैव टू नो इन दिस, ये जो आपके होंगे दे विल हैव अ माउथ ऑन द फ्रंट साइड. सो माउथ विल बी ऑन फ्रंट. Mouth in
अफ्रंट एरिया और अफ्रंट साइड। सो अफ्रंट साइड के ऊपर आई वुड से द माउथ विल बी सीन इन देम। सो बेसिकली इनका माउथ आपका बीच में आएगा, राइट। सो यू कैन से दैट इफ दिस इज अ फिश ओवर हियर, द माउथ विल बी इन द सेंटर अफ्रंट। आपको माउथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। Let's do few things and then we can take up the questions. Let's complete this thing first of all. You will find they will have presence of operculum. So operculum is been seen in them. Operculum is seen. अगर मैं कह रहा हूँ कि operculum आपको यहाँ पे मिल रहा है, that means what कि आपके पास यहाँ पे gills हैं, and the gills will be having a presence of a like covering. So gills के ऊपर आपको यहाँ पे covering मिल जाएगी. So gills के ऊपर you will have a covering over here, and that covering over here is called as my operculum. So operculum as a covering आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। मैंने आपको पहले बताया था that they will have a swim ladders. They will have a presence of a swim ladders. यहाँ पे आपको मिलेंगे swim ladders, या जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज एयर ब्लैडर्स। स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर सेम ही चीज होती है आपके यहाँ पे। सो एयर ब्लैडर्स आर सीन। अब जब मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एयर ब्लैडर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाए, दैट इटसेल्फ मींस कि दे कैन एक्चुअली कीप देमसेल्फ अफ्लोट इन द वाटर कॉलम। या वाटर कॉलम के अंदर बिना कोई एफर्ट लगाए ऊपर या नीचे अपना यहाँ पे वो कर सकते हैं। सो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने दैट दे विल हैव स्विम ब्लैडर्स और एयर ब्लैडर्स आर वेरी क्लियरली सीन इन देम। देन यू विल गेट टू सी फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपका होगा एक्सटर्नल। सो फर्टिलाइजेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे होता है हमेशा एक्सटर्नल। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको मिलेगा यहाँ पे होते हुए, एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी ओविपेरस इन नेचर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी योर ओविपेरस इन नेचर। ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे हो जाएगा, मतलब एग ले करेंगे लोग बाहर, अलॉन्ग विद दैट दे विल रीड द स्पर्म ओवर देयर। सो फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे एक्सटर्नल होगा, एंड ये दे आर द एग लेयर्स। सो वी आर गोइंग टू कॉल देम एज ओविपेरस। सो इन अ ट्रू सेंस दे आर गोइंग टू ले द एग्स। यहाँ पे आपका वो वाले कंडीशन नहीं है जो आपके कॉन्ड्रिक्सिस के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता। आपको यहाँ पे स्केल्स मिल जाएंगे। द स्केल्स हियर आर गोइंग टू बी साइक्लॉइड स्केल्स। सो स्केल्स आपको एक टाइप के आपको मिलते हैं यहाँ पे, साइक्लॉइड स्केल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। स्केल्स की बस आपको ये नाम याद रखना है, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू नो देम, कि वहां पे आपको मिलेगा प्लैकॉइड स्केल्स, यहाँ पे मिलेगा आपके यहाँ पे साइक्लॉइड स्केल्स। सो बोनी फिश माउथ अप फ्रंट साइड पे आपको मिलेगा यहाँ पे, ओपरक्लम इज बीन सीन इन देम व्हिच गोइंग टू कवर द गिल्स। स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर आपको यहाँ पे दिख जाता है। फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पे होगा एक्सटर्नल, एंड यू विल हैव दे आर गोइंग टू बी ओविपेरस इन नेचर। सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी ओविपेरस इन नेचर, एंड मेनली दे आर गोइंग टू बिलोंग टू माय फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। They all belong to mainly freshwater ecosystem. So याद रखना, they all belong to your FW ecosystem. इसका मतलब ये नहीं कि मराइन नहीं होते हैं, बट मेनली आपको ये सारे मिलेंगे आपके फ्रेश वाटर के अंदर। सो फ्यू ऑफ देम आर मराइन, फ्यू आर मराइन, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर सीन इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर। तो ये इतनी बातें आपको इसके अंदर पहले तो याद रखनी है। नाउ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट देम। बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर में के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए। बॉडी स्ट्रीमलाइन, ओपरकुलम विल बी सीन इन देम। जनरली दे विल हैव अ 4 pairs of gills which will be covered by the operculum. Cycloid type of scales, ctenoid type of scales. So basically आपको cycloid term यहाँ पे याद रखना है। ctenoid तो ठीक है, but cycloid term आपको याद रखना है। So cycloid ctenoid kind of scales will be finding in them. So skin को ये cover करते हैं यहाँ पे। आपने अगर कभी देखा होगा ना, लोग जब फिश बना रहे होते हैं, they remove the scales from their body. They remove the scales from the body and then they cook the fish. So that these are the scales they get rid of. Air bladder is present which regulate the buoyancy. Buoyancy का मतलब आपको यहाँ पे ये होता है कि आप मेंटेन कर पा रहे अपना यहाँ पे वाटर कॉलम के अंदर अपना मूवमेंट। तो इनको पूरे टाइम स्विम करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। Blood flows to the gills. Blood flows to gills and then to the rest of the body. They will have a 2-chambered heart. 2 chambered heart हमेशा मिलेगा आपके फिश के अंदर। They will have a 1 artery, 1 ventricle you will find in them. And then you will have sexes are going to be separate, fertilization external, and they are always going to be oviparous in nature. Development आपके यहाँ पे डायरेक्ट होता है, so you don't have a larval stage. वो आपके कॉन्ट्रैक्टिस के अंदर भी आपका डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट ही होता है. So this is what you find in my ऑस्टेथिस के अंदर आपको ये ट्रेट्स आपको यहाँ पे ऐड रखना है. So these are the few traits आपको, जो भी आपको ट्रेट्स मिल जाते हैं कॉन्ट्रैक्टिस के अंदर, उससे अपोजिट ट्रेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. बिल्कुल अपोजिट ट्रेट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं.
सो ओपर्कुलम विल कवर द पर्टिकुलर योर गिल्स यहाँ पे, जो आपको वहाँ पे नहीं था. एयर ब्लैडर आपको यहाँ पे मिल जाए, वहां पे आपको नहीं मिल जाता. माउथ इज ऑन द सेंटर साइड और अपफ्रंट एरिया में आपको यहाँ पे माउथ मिलेगा, बट ऑन द अदर फिशेज यू हैव अ माउथ ऑन द वेंट्रल साइड. सो दीज आर द ट्रेड्स यू हैव टू नो ओवर हियर. ये ट्रेड्स याद रखने आपको ऑस्टेरिस के अंदर. एग्जाम्पल आपके यहाँ पे क्या है? एक्सोसिटस इज अ फ्लाइंग फिश. ये एक्चुअली में उड़ती नहीं है, बस थोड़ा सा ग्लाइड करती है पानी के बाहर आके, जंप करके. सो दैट इज माय एक्सोसिटस, दैट्स अ फ्लाइंग फिश. सी हॉर्स, ये आपका फिश में आता है, लगता नहीं लेकिन ये फिश में आता है. हिपोकैम्पस इसका यहाँ पे नाम आ जाएगा. या लेट मी, बताइए ऋषा क्या सवाल आपका, बोलिए. So, in the NCERT, it's mentioned that osteotheres have endoskeleton. So, of what material the endoskeleton is been made of? Bony. That's the first thing we have written over there. That they are called as my bony fish. जब मैं कह रहा हूँ कि इनको मैं कह रहा हूँ यहाँ पे as a bony fish, that means their endoskeleton is made of my bones. Okay, all right. Right? So बताइए आफ्ताब, बोलिए. Sir, why will remove the scales before the cooking? You ask someone who actually eats the fish. They No, are sir, not general palatable. intro. Palatable नहीं होता वो, palatable नहीं होता. मतलब नहीं वैसे होता आप खाने. You cannot. नहीं, मैं मैं पूछ वही तो कह रहा हूँ. अरे मैं वही तो कह रहा हूँ. आप रिमूव इसलिए करते हो क्योंकि आप पेलेटेबल नहीं होता वो, आप उसे खा नहीं सकते. दैट्स व्हाई. जब आप किसी एनिमल को आप में से उसमें से कुछ चीज आप रिमूव कर रहे होते हो, यू आर डूइंग दैट बिकॉज इट इज नॉट ईटेबल. राइट, लाइक यू रिमूव द feathers from the birds, right? Because they are not eatable. Similarly, scales are not eatable. So that's why you get rid of the scales from the outside and then you start cooking them. ठीक है? सर जनरली या पूछ फिर रहा आप, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, जनरली तो बता रहा हूँ मैं. मैं कौन सा वर्ड रेसिपी बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे. तुम्हें टेंशन तब लेना था जब मैं बताता कि अरे रुको, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं. जनरली बता रहा हूँ. सो गेट rid of the scales because they are not palatable over there. या फिर आप वैसे पहले स्केल्स निकाल लेते हो, या फिर आप यू बॉइल देम एंड देन यू गेट rid of the upper layer of the skin. वो इजीली निकल जाता है. ओके, बाय द वे मैं नहीं कुक करता. आई ओनली ईट वेजीज. सो बढ़िया. Yeah, I know this. So you have a hippocampus over here. That's a seahorse, and that's also example of a fish over there. ये भी आपका फिश का एग्जाम्पल बनेगा यहाँ पे. ये आपकी कॉमन फिश है जो इसे कंज्यूम किया जाता है. लोबियो, रोहू जिसे हम यहाँ पे कहते हैं, कैटला एंड क्लैरियस. दीज आर द फिशेस व्हिच हैव बीन वेरी कॉमनली कंज्यूम इन द कंट्री. इनको बहुत ज्यादा कल्टिवेट किया जाता है और इन्हें कंज्यूम किया जाता है. बाय द वे, ईटिंग फिश और ईटिंग एनी एनिमल इज नॉट अ बैड थिंग. दैट इज समथिंग इज अ नॉर्मल थिंग. ठीक है, राइट. देन यू हैव एक्वेरियम फिश. यहाँ पे यू हैव अ बीटा फिश एंड यू हैव अ एंजल फिश. क्योंकि आपके पास एक्वेरियम नहीं है इसलिए आपको मालूम नहीं होगा, बट यू शुड हैव एक्वेरियम. रख लो एक छोटा सा बना के घर पे. सर देख के आ देखिए चुका अपना फिश फिश को. किंगडम में ही. क्या बेटा, क्या फिश किंगडम गया हुआ था ना, तो वहाँ देख के आया था. वो ले आते फिर छोटा सा एक्वेरियम वहां से लेके. ये सर शार्क बढ़िया को फिश को देख के ग्रो आया था करो. ना, इसीलिए. यू पीपल आर नॉट लाइक दैट ना, कि अपना खुद का फिश ग्रो करते हैं, देखते कैसे ग्रो कर रहा है, ग्रो कर भी रहा है नहीं कर रहा. सम पीपल आर लाइक मोर इनटू एनिमल्स. सर एक आप बार लोग वैसे नहीं हो. सर ली अपना ध्यान थी, नहीं सब रखते. डिपेंड करती है. सर बताओ फिश आलिया, हमने ली बताओ. थी, आपने एक बार लिया, फिर क्या हुआ था? हमने 5-6 ली थी, तो फिर न्यू हाँ, न्यू एक्सपीरियंस था, पता नहीं था कैसे उनको रखते हैं. एक्वेरियम उनके हिसाब से बहुत छोटा था, जो हमें एक वेंडर से मिला था, स्ट्रीट वेंडर था जो लेके घूम रहा था, राइट राइट हमने राइट. उससे उसने ली बाउल थी. किया होगा शायद से. यस सर, फिश यस सर. पॉट या तो ये तो उस हिसाब से हमारा एक्वेरियम इतना बड़ा नहीं था. बाद में जब रिसर्च करी तो पता चला उनका पानी भी बदलना होता है, और एक डिफरेंट राइट. डिफरेंट टाइप की फिशेस होती हैं जो डेप्थ में रहती हैं या हम्म फिर जो ऊपर सरफेस पे रहती हैं. तो वो सारी हम्म मिक्स ऑफ हम्म. फिशेस थी. एक ही उनमें सर्वाइव कर पाई, हमने उसका नाम सिल्वी रखा था. तो क्या सिल्वी अभी हमारे साथ है प्रेजेंट? नो सर, जब हम आउट ऑफ टाउन थे तो मैं अपनी कजन को देके गई थी. वो कहा, उनने कहा कि वो जंप कर गई बाहर और वो इवेंचुअली डेथ हो गई उसकी. So cousin took care of the Sylvie यस in सर. every possible way. ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है, कोई नहीं. बट हाँ होता है, इनिशियली आपकी फिश जाती है, इनिशियली आपको वो एक यू हैव टू, क्या सर वो 6 फिश ली ध्यान. थी हमने, उसमें से एक ही सर्वाइव कर पाई जो कि सिल्वी थी. बाद में हमने जब गूगल पे उसका सर्च इमेज करा तो पता चला ये डेप्थ में रहने वाली है और इसका पानी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसको पानी चेंज करने की. मतलब इजी था उसको रखना, पर फिर भी हम्म.
कवर होता ना, अगर ऊपर उसके ऊपर कवर होता तो शायद ये नहीं हुआ होता, बट ठीक नहीं, है। उनने बट पानी आई थिंक चेंज करने बिकॉज के यू लिए। अच्छा, पानी चेंज के लेके उन्हें बाहर निकालने गए और देन इट हैपेंड। चलो ठीक है, हम्म। बताइए हर्षित, बताइए आपकी कहानी बताइए, बोलिए। सर फिशेस को आटा खिलाते तो वो मर जाती हैं क्या? आटा मैंने वो जंगली फिश को तो खिलाया, उनको तो पता नहीं, बट घर वाले फिश को आप आटा नहीं खिलाते हैं, ये एक्वेरियम वाले फिश को तो सर फिश फिश फूड आप फूड खिलाते भी हो, लिया मुझे था वही। हमने, ऐसे क्यों, फिश फूड का लेकिन पूरा पैकेट आता है एक। हाँ, वो जिसमें स्मॉल ऑरेंज स्मॉल बॉल्स ग्रीन होती हैं कलर वो, के छोटी बॉल। छोटी सी, ग्रीन एंड रेड। Yes, sir. राइट, 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 यू। अच्छा, अच्छा, बढ़िया। सो हाँ, आटा जनरली ऐसे रोहू मिल जाए ना कभी पानी के अंदर तो उसे आटा खिला देना, बट घर वाली फिश को ना खिलाओ तो बेटर ही रहता है। लाइक some हमारे घर fishes पे को। फिशेस थी, हाँ, बोलो बोलो, तो फिर ना बताओ। हमारे कोई कजन आए थे, उन्होंने उनको आटा डाल दिया। हमने बोला इनको खाना डालना है, तो उन्होंने खाना तो डाला नहीं, आटा डाल दिया, सारी की सारी मर गई मतलब सुबह तक। हाँ, ये भी मैंने कई बार सुना है होते हुए कि बच्चे आते घर पे छोटे छोटे और उन्हें मजा आता है देखने में, तो कुछ भी डालते हैं, बिस्किट डाल रहे होते हैं, पॉपकॉर्न डाल रहे होते हैं, एंड द फिश विल ईट एनीथिंग जो भी पानी पे तैर रहा होता है, तो एंड देन दे डाई, सो इट हैपेंस, इट डज हैपन। सो कोई बात नहीं बेटा, अगली बार से ध्यान रखना। ऑलराइट, सो बियॉन्से इन ऑस्ट्रेलिया इज ड्यू टू प्रिंस ऑफ व्हाट, बताइए। आलिया, क्या होगा इसका आंसर, बता दो जल्दी से। सर एयर ब्लैडर। Blood is the correct answer in this, right? So they are like very simple things over here you should know. All right, so this is what we have done. So we are done with my chondrichthyes and we are done with my osteoarthritis. ये दोनों ग्रुप्स हमने यहाँ पे कर लिए। इसके बाद जो मेरा यहाँ पे आएगा, अच्छा एक और टर्म यहाँ पे बता देता हूँ। सारी फिश जो आपकी होती है, इनके हम एक टर्म यूज करते हैं, we call it poikilotherms. We call them as a poikilotherm. Poikilotherms का मतलब आपका यहाँ पता है cold blooded animals. Poikilotherms का मतलब आपका यहाँ पे होता है हमेशा यहाँ पे, they are called as my cold blooded animals. Now when I say these are my cold blooded animals, so याद रखना cold blooded animals के अंदर आपका क्या क्या आएगा, आपके सारे फिश आ जाएंगे, you will find all the fish will come under the cold blooded animals के अंदर. Along with that you will also have your something called as your reptiles and amphibians. They are also come under the category of my cold blooded animals यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखना पोइक्लोथर्म्स, अगली बार आपके सामने एक टर्म आएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। व्हेन यू गेट दिस टर्म यू शुड नो दिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर माय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब व्हाई एनिमल्स आर कॉल्ड माय कोल्ड ब्लडेड वो हम देखते हैं, व्हेन आई टेल यू द रेप्टाइल्स ना, तब मैं आपको ज्यादा बेटर तरीके से बताता हूं वहां पे आपको मैं। बट याद रखना, यू हैव अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड यू हैव वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वी आर गोइंग टू बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ योर वार्म ब्लडेड एनिमल्स बिकॉज वी कैन रेगुलेट अवर बॉडी टेम्परेचर। वो हम बाद में देखते हैं, बट फिलहाल के लिए याद रखना द टर्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है, द पोइक्लोथर्म्स का मतलब आपको यहाँ पे होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इन दिस। ओके, so these are the things we have seen example हम यहाँ पे देखिए, this is a summary of the things which I have done so far, and after this the next group which we will find over here is my amphibians. अब अगला ग्रुप जो आपको यहाँ पे था that's amphibians. अब amphibians हम पूरा तो यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, बट कुछ चीजें हम यहाँ पे जान सकते हैं। Like amphibians are the group जिसके अंदर you will have a larval stage called as my tadpole, right? But that is something you will always find in my frogs. यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पे एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए आप लोग काफी गड़बड़ करते हो। एम्फीबियंस में आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है। एक आपका यहाँ पे आता है फ्रॉग, जिसमें आपको हर एक ग्रुप मिल जाएगा फ्रॉग के अंदर, लाइक एवरीथिंग इन लाइक फ्रॉग टोड एवरीथिंग, फ्रॉग एंड टोड आपको मिलेगा इसके अंदर। एक ग्रुप आपका यहाँ पे आता है सिसेलियन, द नेक्स्ट ग्रुप इज गोइंग टू कॉल्ड एज माय सिसिलियन। तो you have a amphibian के अंदर याद रखना, you have a Sicilian, you have a frog and a toad, and the next one is going to be called as your salamander. बस ये तीन ही एग्जाम्पल आपको याद रखने एम्फीबियन के अंदर। याद रखना टर्टल नहीं आता एम्फीबियन के अंदर, क्रोकोडाइल नहीं आता एम्फीबियन के अंदर, वो सारे रेप्टाइल के अंदर आते हैं। सो विल ओनली हैव योर सिसेलियन, योर salamander, and you will have a frog and toads. These are the only examples you will find coming under the amphibians. Wait a minute. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखना। अब सिसिलियन तो आपने कभी देखा नहीं होगा, या आप देख भी नहीं पाओगे,
बिकॉज क्योंकि आप सब दिल्ली में रहते हो इसलिए। द सिसिलियन इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग इन द, ये आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट्स में। अगर आप कभी महाराष्ट्र साइड अगर आते हो मानसून के अंदर, देन वहां पे अगर आप फॉरेस्ट में अगर घूमोगे तो आपको शायद मिल जाए। सिमिलरली सेलेमेंडर भी आपको कभी देखने के लिए मिलेगा नहीं, बिकॉज ये इंडिया में सिर्फ आपको मिलता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। सो नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम या मेघालय में एक फॉरेस्ट के पैच के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिल सकता है। और एक ही स्पीशीज है इंडिया में, तो और कहीं मिलती भी नहीं है, मतलब इंडिया में और कहीं नहीं मिलती। तो ये दो तो आपने कभी देखे होंगे नहीं, बट फ्रॉग एंड टोड्स आर कॉमन। सो जनरली लोग क्या करते हैं, कई बार बच्चे आपके रेप्टाइल्स के अंदर से निकाल लेते हैं आपके टर्टल या टॉर्टोइस को और उसे डाल देते हैं इसके अंदर, बट दैट्स अनट्रू। एम्फीबियंस के अंदर आपको 3 एग्जाम्पल याद रखना है, यू हैव अ सिसिलियंस, सैलमेंडर एंड योर फ्रॉग एंड टोड। दीज आर द ओनली 3 ग्रुप्स यू हैव टू नो इन दिस। और कुछ इसके अंदर आपका यहाँ पे नहीं आता। अब कैरेक्टर तो मैं आपको बता नहीं रहा यहाँ पे, बट याद रखना एम्फीबियंस आर द मोस्ट फ्रेजाइल ग्रुप। मतलब ये जो आपके यहाँ पे ग्रुप होता है, इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का सबसे सीवियर इंपैक्ट होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर कोई स्पीशीज आपकी डिक्लाइन करेगी तो आपकी एम्फीबियंस ही होगी। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ ग्रुप व्हिच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ ग्रुप व्हिच यू हैव टू कंजर्व। इनको कंजर्व करना या इनका एक्सटिंक्शन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। सो दिस इज अ ग्रुप व्हिच नीड्स टू बी कंजर्व। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। हाँ जी, आफ्ताब बताइए, बोलिए। सर ये तो दोनों में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन इनकी क्यों है कि डिक्लाइन होने की ज्यादा, ये क्वेश्चंस थोड़ा। Temperature matters a lot to them. Like what you will get to see, amphibians are only seen in some of the areas where you have a very stable and low temperature, stable temperature. Amphibians आपको ज्यादा कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे आपका टेम्परेचर काफी लाइक आपका स्टेबल हो, लाइक फॉर योर रेन फॉरेस्ट, वहां पे आपको मिलता है। अब अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज होता है ना, दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। उनका ब्रीडिंग साइकिल वो लोग वहां पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो दैट यू हैव सम एम्फीबियंस व्हिच आर सीन इन अ हैबिटेट जहां पे आपका एवरेज टेम्परेचर आपका होता है 18 डिग्री सेल्सियस। वो 18 से 18.4 18.3 18.5 हुआ, अगर आपका टेम्परेचर वहां पे चेंज होता है, यू वोंट फाइंड दोस एम्फीबियंस विल बी एबल टू डू देयर नॉर्मल लाइफ साइकिल। वो अपना नॉर्मल जो आपका लाइफ साइकिल होता है वहां पे वो कर नहीं पाएंगे, एंड दे स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सो दे नीड अ वेरी माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इनको चाहिए होती है। अगर वो चेंज होती है तो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। द पॉपुलेशन इज नॉट एबल टू अडेप्ट एंड दे विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग ओवर देयर। सो ये इनके साथ प्रॉब्लम है। तो क्लाइमेट चेंज का सबसे सीवियर इंपैक्ट इनके ऊपर ही होता है। डिफॉरेस्टेशन आपने किया, अपने आप अगर फॉरेस्ट निकाल दिया, अगेन दैट विल चेंज द टेम्परेचर। आई गिव द एग्जांपल ओवर हियर। समझो आपका एक पैच ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको 2-4 एम्फीबियन की स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल रही है सेंटर में। अगर आपने इस फॉरेस्ट का आउटर पार्ट अगर आपने यहाँ पे कट कर दिया, इतना पार्ट में मैंने यहाँ पे अपना खेती कर लिया, तो सिंपल सी बात है, जो मेरा सेंटर था वो सेंटर रहा ही नहीं, पूरा कॉर्नर में आ चुका है फॉरेस्ट का। दैट चेंजेस द माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ओवर देयर। और जैसे आपकी माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे चेंज होती है, the species are not seen to be very much adaptive to those conditions and they start declining. So एक प्रोजेक्ट निकला था बीच में तमिलनाडु के अंदर, जहां पे आपको जाके यू आर स्टडिंग द एम्फीबियंस बिकॉज देयर वाज दिस फंगस, चिट्रिड फंगस। एक फंगस आपके यहाँ पे चिट्रिड फंगस करके, ये फंगस एम्फीबियंस के ऊपर ग्रो कर रहा था और इस फंगस की वजह से एम्फीबियंस की डेथ हो रही थी। तो इसके लिए बीच में प्रोजेक्ट निकला था, बीच में मतलब हो गए 4-5 साल हो गए, जहाँ पे आप जाके एम्फीबियंस के सैंपल्स को इकट्ठा करके आप ला रहे थे टू अंडरस्टैंड कि ये फंगस कितना पे ग्रो कर रहा है और कितना एक्सपांड कर चुका है। कभी आप पढ़ोगे ना इसके बारे में फ्यूचर में, विल गेट टू नो दिस। आपने किया? सो नहीं, मैंने नहीं किया, मैं नहीं गया था उस प्रोजेक्ट में, बट वन ऑफ माय फ्रेंड डिड दैट, दैट्स आई नो दैट। So you actually have to go out there, you have to collect the sample of the fungus from the body of the frog, and then you have to see कि कितना वहां पे स्प्रेड हो रहा है। बताइए आफ्ताब, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था ना, आपको हर एनिमल्स की नॉलेज है, आपको आपने बुक से ली थी या एक्सपीरियंस आपको? नहीं, एनिमल्स को लेके आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इट, आई वुड से। इट्स लाइक पता है कुछ चीज होती है जिसको लेके आपको इंक्लाइनेशन होता है थोड़ा ज्यादा, you यस don't know सर। why but you have some inclination. For me it goes with animals, so मेरे लिए वो animals को लेके थोड़ा होता है। कोई बात So it's like कोई बात नहीं, yeah I know, yeah it's कोई बात नहीं, yeah but that is the thing with me. जब मैं रेन फॉरेस्ट जाऊंगा ना, आप ही से पूछूंगा क्या क्या मिलता है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, और मेरे से पूछ के जाना कि कौन से फॉरेस्ट में जाना है, ताकि ऐसे फॉरेस्ट में ना जाओ जहाँ पे कुछ ना मिलता हो। Alright, so that is something we have done over here. And कल हम लोग जो मिलेंगे तब का आपका चैप्टर होपफुली खत्म हो जाएगा।
द आइडिया इज टू मेक यू सॉल्व क्वेश्चन एज वेल कल, क्योंकि परसों टेस्ट भी है ना आपका। सो करते हैं, कल मिलते हैं एक बार। कल हम शाम को मिलेंगे ना, कल हम रात को मिलेंगे। सो थोड़ा रुक जाना, स्टे फॉर टिल 10:30 इफ पॉसिबल एंड सॉल्व सम क्वेश्चन एज वेल। तो चैप्टर भी खत्म कर लेंगे हम यहाँ पे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे Okay, sir. एंड बना लेंगे ग्रिप इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से। सो विल बी डूइंग दैट, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपके साथ कुछ 7-8 क्वेश्चन शेयर किए थे मैंने बीच में आपके साथ, उसकी आंसर की आज रात को आपको मिल जाएगी। जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया है वो कर लेना, डू दैट। सो Okay, sir. ठीक है। सो यार दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। सो अगर कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लो, और एल्स वी कैन रैप दिस अप। विल यू शेयर? नो बेटा, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। द लिंक्स हैव सम एरर्स ओवर देयर, सो वी वोंट बी एबल टू शेयर देम। लिंक वहां पे जो आ रही है उनके अंदर थोड़े एरर्स आ रहे हैं। सो Okay, sir. in case if you have no question, then yes, you can drop off, have something, because you have one more lecture at 8:45. So yeah, bye. Have a nice day, sir. Bye, sir.